Good morning, students. Standard 8 English Medium, Unit 1. The poem. The name of the poem is The Ant and the Cricket. Here is this poem. The poem gives the moral. Here there are two characters, which the ant and the cricket. This poem gives an idea. Okay, the characters ant and cricket. These characters, the ant and cricket, compared with human beings. See the poem. Let's read the poem. Through the poem, I will explain about this. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. The first stanza. Once there was a foolish young cricket. It was his habit to pass the sunny months of summer and spring in singing. When winter came, he began to grumble. There was nothing to eat. His cupboard at his home was empty. Okay, I am going to translate it. Okay, this stanza in Hindi. एक मूर्ख युवा झिंगूर था। विद्यार्थी मित्रों, वो क्या करता था? गर्म और बसंत के दोपहले महीनों को गाते हुए बिता देना उसकी आदत थी। कुछ काम न करना, बस पूरे दिन गाते रहना। जब सर्दी का मौसम आया, बर्फ पड़ने लगी, सर्दी का मौसम आया तो वह दुखी हो उठा। सैड फील कर रहा था, दुखी हो उठा। क्यों? क्योंकि खाने के लिए कुछ उसके पास न था। घर पर उसका भंडार खाली था। घर पर भी जो चीज़ें थी खाने के लिए वो भी बिल्कुल खाली थी। तो ये फर्स्ट स्टांजा था। फर्स्ट स्टांजे के अंदर ये झिंगुर के बारे में बताया गया है कि उसके वो सर्दियों में कुछ नहीं, गाने की आदत उसकी थी। ओके, लेट्स सी द सेकेंड स्टांजा. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? The cricket did not find any food in winter. Oh, here and there he found the food, but the cricket did not find any food in winter. There was ice everywhere. There was ice everywhere. Neither a flower nor a leaf on a tree could be seen. Nothing could be seen. Even a flower or leaf on a tree. The cricket wondered aloud what would become of him. The cricket, how sad. The cricket here and there he wondered and telling aloud, what would become of me? Jingur. I am going to translate this stanza in Hindi. जिंगूर को सर्दी में भोजन नहीं मिला। हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, इसीलिए ही इधर उधर वो घूमता रहा था। बर्फ की वजह से कहीं भी एक भी फूल भी नहीं था, न कोई फूल और न ही कोई पेड़ पर कोई पत्ती दिखाई देती थी। झिंगूर चिंता में बोल उठा, मेरा क्या होगा? क्योंकि खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं, तो झिंगूर क्या करेगा फिर? क्रिकेट क्या करेगा? तो वो बोल उठा कि अब मेरा क्या होगा? खाने के लिए तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगा? तो ये था सेकेंड स्टांजा. दिस इज द सेकेंड स्टांजा. नाउ कम्स टू द थर्ड स्टांजा. At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold,
Away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant. Explanation. The cricket came on the verge of death. He was dying of hunger. So he took courage, wet with rain and shivering with cold. He went to a miserly ant. He wanted to know if the ant would help him keep alive. Okay, this stanza I am once again explain in Hindi. Okay, झिंगुर मरने लगा था क्योंकि खाने के लिए कुछ था नहीं, तो झिंगुर करेगा क्या? झिंगुर मरने लगा, वह भूख से मर रहा था, खाने के लिए कुछ था नहीं, એટલે उसके पेट में पेट खाली था, तो भूख से वो मर रहा था। अतः उसने हिम्मत जुटाई, इसी दौरान उसने हिम्मत जुटाई। वर्षा से भीगता और ठंड से कांपता वह एक कंजूस चींटी के पास पहुंचा। बराबर, जो चींटी थी वो बहुत कंजूस थी। क्यों कंजूस कहते, लेकिन क्यों? क्योंकि वो हर दिन मेहनत करके फूड इकट्ठा करती थी, इसीलिए, और वो फूड वो किसी को नहीं देती थी, इसीलिए झिंगुर उस चींटी के पास गया। क्यों गया था? क्योंकि उसे वो भूख से मर रहा था, इसीलिए वो चींटी के पास गया। बराबर, उसने जानना चाहा कि क्या चींटी जिंदा रहने में उसकी सहायता करेगी। इस स्टांजा में ये कहते हैं कि चींटी उसको खाना देगी कि नहीं देगी। चींटी देगी तो वो बच जाएगा, लेकिन नहीं देगी तो झिंगुर मर जाएगा। इसीलिए वो सिर्फ जानने के लिए गया वहाँ पर कि चींटी अगर खाना दे देगी तो वो मरने से बच जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट द फोर्थ वन, him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Now see the explanation. The cricket requested the ant to give him protection from rain. If the ant is ready to give him a shelter, he would be safe. He also wanted a small quantity of food because he was very hungry. So if the ant was ready to give him a small quantity of food, he would be okay. His intention was to repay the debt soon. The cricket's intention was that if the ant was ready, he would repay it. His debt would repay it. He said that if the ant was not kind, he would die. Now that was the explanation. Now explanation in Hindi. झिंगुर ने चींटी से निवेदन किया कि वह उसे वर्षा से बचाए। अगर वर्षा से वो चींटी उसे झिंगुर को नहीं बचाएगी तो क्या होगा झिंगुर का? झिंगुर तो मर जाएगा ठंड से, क्योंकि कांपने लगा था, भूख भी ज़्यादा लगने लगी थी। इसीलिए निवेदन किया चींटी से झिंगुर ने कि उसे वर्षा से बचाए, और वर्षा से बचाए और क्या दे? वह थोड़ा सा अन्न भी चाहता था झिंगुर, खाने के लिए थोड़ा चाहता था अन्न। अगर अन्न दे दे तो वो थोड़ा भूख जो लग रही थी उसे ज़्यादा वो भूख मिटा पाए। क्योंकि झिंगुर का इरादा क्या था? उसका इरादा यह था कि इस कर्ज को शीघ्र ही वो उतार देगा। जैसे ही ये सर्दी की ऋतु खत्म हो जाएगी, जो कर्ज ले रहा है खाने के लिए, जो ले रहा है चींटी से, वो वापस कर्ज उतार देगा। बराबर, तो वो झिंगुर क्या बोला? झिंगुर बोला कि अगर चींटी ने दया नहीं की तो वो मर जाएगा। अगर चींटी ने कुछ भी मदद नहीं की तो झिंगुर सर्दी से और भूख से वो मर जाएगा। अगर चींटी रेडी हो गई, बराबर, कि इसे अंदर बुला ले उसके घर के अंदर और खाना दे दे, तो झिंगुर बच जाएगा। वरना झिंगुर की हालत सर्दी से और भूख से बेहाल है, तो वो मर जाएगा। इसीलिए झिंगुर निवेदन करता है कि प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट करता है उसे, टू गिव हिम प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन एंड गिव हिम सम फूड। ओके, तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ
page number 21 of this poem. Page number 22. Next stanza. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. Means, the ant said to the cricket, I am your servant and friend. However, it is our principle that we neither borrow nor lend. But dear cricket, did you not save anything for the bad weather during the warm days? The cricket said that he didn't. हिंदी में समझाता हूँ. चींटी जो है वो झिंगुर से बोली, मैं आपकी सेवक और मित्र हूँ. ओके, फ्रेंड. मैं आपकी सेवक और मित्र हूँ, सर्वेंट एंड फ्रेंड. पर हमारा सिद्धांत है, चींटी का सिद्धांत है. क्या सिद्धांत है? कि हम कभी भी उधार नहीं देते हैं और ना ही उधार लेते हैं. चींटी यह बोली. क्या बोली? प्रिय झिंगुर, क्या गर्मी के मौसम में तुमने सर्दी के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा था? झिंगुर ने उत्तर दिया, नहीं. चींटी ने तो पूछा कि गर्मी के मौसम में तुमने कुछ नहीं बचा के रखा था? गर्मी के मौसम में सर्दी के लिए कुछ बचा के नहीं रखा था? झिंगुर बोला, नहीं रखा था. तो फिर क्या किया? ऐसा चींटी ने उसे बोला. देन नेक्स्ट स्टैंजा. माई हार्ट वॉज सो डिलाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से. Go then, says the ant, and dance the winter away. Okay, then see. I felt so light at heart that I sang and sang all through the day and night. Every object of nature seemed very happy. This was said by the cricket. The ant said, Sir, if you pass the summer in singing, pass the winter in dancing. The cricket says. Now explanation in हिंदी. क्या कहा? मेरा दिल ऐसा खुश था कि मैं दिन रात गाता ही रहता था. ऐसा किसने कहा? क्रिकेट, यानी झिंगुर ने कहा चींटी से कि मैं पूरे दिन गाता ही रहता, दिन हो या रात हो गाता ही रहता था. सारी प्रकृति प्रसन्न दिखाई दे रही थी तो मैं गाता रहता था. ऐसा झिंगुर ने चींटी से कहा. तो चींटी ने क्या कहा? क्योंकि चींटी तो उस दिन भी हर वक्त काम करती रहती, तो चींटी ने कहा, श्रीमान, अगर आपने गर्मियों को गा कर बिता दी तो जाओ सर्दियों को नाच कर बिता दो. गाते बिता दी तो ये सर्दी का मौसम है, गा के भी फिर नाच के बिठा दो. द लास्ट स्टैंड. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Fox calls this a fable. I would warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. So saying, he means the ant closed the door. So the poor young cricket came out of the ant house. People say that it's a story with a moral. The poet believes it's true. He says that there are people in the world who behave like that cricket of the story. Then explanation in हिंदी. वो ऐसा कहकर चींटी ने तो दरवाजा बंद कर दिया और झिंगुर को बाहर भेज दिया. क्यों? इस प्रकार बेचारा झिंगुर क्या करता? चींटी के घर के बाहर निकला. लोग कहते हैं कि यह नीति कथा है. बराबर, नीति कथा है, फेबल मोरल है, नीति कथा है. कवि को विश्वास है कि यह सच्ची बात है. वह कहते हैं, कवि कहते हैं कि संसार में 2 पैरों वाले ऐसे लोग हैं जो कहानी के 4 पैरों वाले युवा झिंगुर की तरह व्यवहार करते हैं. इसीलिए इसे ऐसा मोरल दिया गया है. मोरल ऑफ द स्टोरी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, this was the explanation of unit 1 poem, The Ant and the Cricket. In the next class, I am going to explain the small question answer and long question answers with to you. Okay, thank you.